ایک سوال یہ کہ کوئی جانور جنت میں جائے گا؟ بھائی جانور جو ہیں وہ صرف دنیا کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے یہاں ان کی سہولت کے لیے صرف انسان اور جیو کا حساب ہوگا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ لیڈیز میں سوال ہے، ابھی گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، سکون کیسے ملے گا؟ ایک سوال یہ ہے گھر میں بہت پریشانی ہے، سکون کیسے ملے؟ بھائی اللہ کے احکام اللہ کی شریعت کی پابندی کریں، انشاءاللہ سکون مل جائے گا۔ دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ بذکر اللہ وتطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ نماز ہے، جس میں اللہ کا کلام پاک پڑھا ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام ذکر ہے، اللہ کی تسبیحات، اللہ کے صفاتی نام۔ اور اگر آپ مومنہ بن کے اپنی زندگی گزارتی ہیں، اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ رویہ رکھتی ہیں جو نبی کی بیٹیوں اور بیویوں کے ساتھ، تو یہ بھی ذکر ہے، آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی ذکر ہے۔ اگر آپ شریعت کی پابند ہیں، شریعت کی پابندی کریں، بے پردگی سے بچیں، اپنے سیدھے فیشن سے بچیں، اور اپنے میاں کی بے حرمتی اس کی جو کہنا نہ ماننا ہے اس سے بچیں، انشاءاللہ لازمی اللہ کی طرف سے آپ کو برکتیں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ ایک تو میں سب لوگوں کو دے دوں، دنیا اور آخرت سنبھالنے کے لیے جو میرے استاد نے مجھے آیت دی تھی قرآن کی، بہت مشہور آیت ہے، اور آپ لوگ روز پڑھتے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ قرآن کی آیت ہے، 101 نمبر سورہ بقرہ اس کا حصہ ہے۔ آپ ایک تصدیق ہی مان لو، گارنٹی سے آپ کے گھر پر سکون ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دنیا بھی چھوڑ جائے گی، وہ دنیا بھی چھوڑ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک سوال ہو رہا ہے بہن کے، شب قدر کے دن عورت حیض سے ہوتی ہے تو ان کو کیا پڑھنا چاہیے؟ روزہ ایک رکھنا چاہیے؟ تو ان کا سوال یہ ہے حیض سے عورت کیا پڑھے؟ اور روزہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایک نمبر بات پڑھائی زبان پاک ہے، جو دعائیں انہیں یاد ہوں ساری دعائیں پڑھیں اور زیادہ زیادہ استغفار کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی ذکر کر سکتی ہے۔ تمہیں قرآن چھو نہیں سکتی، لیکن اگر قرآن دعاؤں کی شکل میں آ جائے تو پڑھ سکتی ہے۔ آپ بتاؤ کیا عورت اپنے بچے کا نام رکھ سکتی ہے یا پھر پہلا حق کس کا ہوتا ہے گھر میں؟ ان کا سوال یہ ہے پہلے حق نام رکھنے کا کس کا ہوتا ہے؟ کیا عورت بھی نام رکھ سکتی ہے؟ بالکل رکھ سکتی ہے۔ سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام کا نام ان کی ماں نے رکھا تھا، قرآن کا حوالہ ہے، اس لیے کوئی سوال نہیں ہے اگر ماں اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں۔ ہاں ان کا سوال یہ ہے کہ علی دروازہ ہے اور میں ان کا شہر ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے جانے کے بعد ان کا دروازہ علی کے ذریعے کھلے گا، کہیں کوئی پھنسے تو وہ علی کے پاس پہنچ جائے۔ حضرت عمر بہت جاتے تھے علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کہیں کوئی معاملہ ایسا پھنسا تھا تو حضرت علی سے پوچھتے تھے اس کی روایت میں۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا سوال یہ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل فرماتے تھے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے اور اس کے بعد ناک میں پانی کلی کر کے 3 بار ناک میں پانی ملایم کرنے کا، 3 بار غرارے کرنے، اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، اس کے بعد اپنی گندگی دھوتے تھے۔ اس ٹائم صابن تھے تو مٹی سے گندگی کو صاف کیا کرتے تھے جہاں جہاں گندگی لگی ہوتی تھی۔ اس کے بعد پورا غسل فرماتے تھے۔ غسل کے بعد سب سے پہلے 3 بار ایک کندھے پہ پانی، پھر 3 بار دوسرے کندھے پہ پانی، دائیں بائیں کندھے پانی ڈالے اور تھوڑا سر سے اس طرح پانی بہاتے تھے پورے جسم پہ کہ پورا جسم گیلا ہو جائے، بال برابر میں کہیں سے سوکھا نہ ہو۔ یہ غسل کا طریقہ تھا اور بہت آسان ہے الحمدللہ۔ ایک شادی پر قرآن کے سائے میں بیٹی ودا کرنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شادی میں قرآن کے سائے میں بیٹی ودا کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی ویسے تو کوئی حرج نہیں، منع نہیں ہے، کوئی بدعت ہے، اگر اسے ضروری سمجھیں گے کہ ہم نے قرآن کے سائے میں بیٹی ودا کرنی، بات تو ہے قرآن کی تعلیمات کے ساتھ بیٹی ودا کرنی چاہیے کہ قرآن کی تعلیم اسے دے کے بھیجیں، صرف تلاوت نہ رکھیں بلکہ اسے ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا غور و فکر، اس پہ عمل، وہ سایہ ہے اصل تو۔ یہ کیا کہ قرآن کو جزدان میں اوپر کر کے ایک آدمی لے کے چل رہا ہے، یہ تو بدعت ہے، تو اس سے بچیں، وہ کریں جو ہم کہا جو بدعت طریقہ ہے۔ ہاں قرآن اپنے بارے میں کیا کیا دلائل دیتا ہے کہ دیکھو یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، خدا ہی کا کلام؟ اس کا سوال یہ ہے قرآن کیا دلائل دیتا ہے کہ یہ خدائی کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہوتا؟ بھائی یہی تو آج آیت آئی ہے کہ کافر یا مشرک لوگ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے خود گھڑ لیا اور
में तो कोई आदमी आगे नहीं सिखा जाता है, तो अल्लाह ने चैलेंज दिए एक जगह की 4-5 जगह, और ये चैलेंज ही इस बात की दलील है। एक जगह अल्लाह ने कहा इस जगह कलाम बना के लाओ, एक जगह कहा ये जैसी एक सूरत बना के लाओ, एक जगह कहा 10 सूरतें बना के दिखा दो। मतलब छोटी से छोटी सूरत सूरह असर भी कोई बना के नहीं ला सका उस जैसे। तो ये अपने आप में ऐसा चैलेंज है, ये दलील है बात की ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का बना नहीं है। वरना इतने मुखालिफ मौके में होने के बावजूद और इतने मुखालिफ मदीने में होने के बावजूद एक 3 आयतों की सूरत ही बना के लाते। कुरान ने ये भी चैलेंज किया कि सारे मिल जाओ, अपने साथियों को मिला ले, फिर बना के दिखा इस जैसा कलाम। तो ये तो अपना आप बहुत बड़ा चैलेंज है। एक ही है जो आगे सीधे रास्ते को होता है, सच बोलता है और ईमानदारी को अपनाता है, तो लोग उसे हट्टी कहते हैं। और जो लोग तेरी दिल चापलूसी या गलत बात करते हैं, कोई बड़ा अच्छा आदमी है, उसकी हिमायत लग जाते हैं, वो बेचारा तन्हा रह जाता है और अकेला पड़ जाता है। असल में बात यह है कि हमेशा जो होता है कि सवाल यह है कि जो सच्चे लोग होते हैं उन्हें कम तक समझा जाता है, जो चापलूस लोग होते हैं उन्हें बेहतर समझा जाता है। ये हमेशा से होता है। जो दीनदार लोग हैं ना उनका दुनिया में नुकसान हमेशा से होता है, और जो दुनियादार लोग हैं ना, दुकानदार हैं या बिजनेसमैन हैं, उनका हमेशा से दीन का नुकसान होता है। आप देख लो, आप नमाज के लिए निकले, एक कहा आगे आपकी नमाज में, और जो दीनदार होगा ना वो निकल के खड़ा हो जाएगा, खड़ा है, चाहे उसका 10,000 का नुकसान हो गया, उसके नमाज का नुकसान नहीं हो। ये फर्क है। लेकिन ये यहाँ दुनिया में नुकसान है बहुत हल्का था, आखिरत बहुत बड़ी है। तो इसलिए यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को हक़ीर नहीं समझा गया, और किसी को उनसे ज़्यादा बेइज्जत नहीं किया गया, किसी पे उनसे ज़्यादा तशद्दुद खुद नबी कहती है कि तमाम नबियों को सताया गया और सबसे ज़्यादा उन्हें सताया गया। उसके बाद इज्जत कैसी मिली, आखिर क्या होगा, बेताज बादशाह बने, मदीने पहुंचे। तो जो सच्चा है वो लाज़मी हर हाल में उसे आखिर में अल्लाह की मदद आएगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो इस रास्ते पर चला उसे नुकसान से रोकना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है कि हुजूर क़यामत कब आएगी? हुजूर ने कहा कि ऐसी क्या तैयारी करी तुमने कि क़यामत पूछ रहा? हुजूर का तो अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत है, तो फिर मुसीबतों के लिए तैयार है। तो जो जितना दीनदार सच्चा होगा उसको उतनी मुसीबत आएगी। एक रिवायत में कहा कि अच्छा अल्लाह रसूल से मोहब्बत है, तो जो जिससे से मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ आ सकता है। तो इसलिए अगर आप दीन के रास्ते में चलते हो तो परेशानी रुकावटें तो आएंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत पे आई परेशानी, तो हम तो है जी। और जिसे परेशानी नहीं आती वो हक़ है, फिर वो बातिल है, फिर वो सिर्फ लफ़ाज़ी है और मुनाफ़िक़त है। अगर परेशानी आती है तो वो सुन्नत है। कुरान कैसे मौजूदा है? इनका सवाल ये है कुरान कैसे पहुंचता है। कुरान तो सबसे बड़ा मौजूदा ये है कि वो जैसा कलाम नहीं बोला सकता। दूसरे उसके अजबियात जो है ना, जो उसकी हिकमतें हैं, उसकी खूबसूरती है कि उसके जो पहलू है ना जो खुलेंगे क़यामत तक। कभी ऐसा और नहीं हो सकता कि क़यामत तक उसके अंदर से गौहर और रुचि ना निकले। और ये आप देखो हर दौर में कभी तो कहा जाता था ना कि जमीन रुकी हुई है और सारे सियारे घूम रहे हैं, आज के पता लगा कि सारे सियारे घूम रहे हैं। तो ये नई डिस्कवरी है। तो इस तरह की डिस्कवरी होती रहेगी। और जो डिस्कवरी है कुरान में 14-15 साल पहले आ चुकी, वो डिस्कवरी अब हो गई। ये सबसे बड़ा मौका है कुरान का कि वो डिस्कवरी खोलता रहता है और लोग दांतों दबी नीचे दबा देते हैं कि ये अल्लाह ने 15 साल पहले कहा। क्या नमाज के बाद तस्बीह पढ़ना ज़रूरी है? ठीक है, सवाल ये है नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़ते हैं क्या ज़रूरी है? नहीं भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब माले गनीमत आया तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहुंची कि हुजूर गुलाम भी आए हैं, कोई गुलाम हमें भी दे दें। हमारे हाथों में ठेके पड़ गई, कमर में निशान पड़ गया, मशक हो गए, चक्की चला के। तो हुजूर ने कहा कि फातिमा मुझे उससे बेहतर चीज़ दो, 34 बार अल्लाहू अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार सुभान अल्लाह, ये पढ़ लिया। हज़रत फातिमा को बताया आपके ऊपर वाजिब नहीं है, लेकिन जो पढ़ते हैं अल्लाह का नाम, कुरान को ये कहते हैं कि सुबह शाम अल्लाह की हम्द व सना करो। तो जो लोग पढ़ रहे हैं बेहतर है। अगर कोई उठते चला जाता है तो बुरा काम होते जाए, मतलब बुरा काम हो गया। क्योंकि हुजूर ने हुक्म नहीं दिया इस बात में। एक बेटी को हुक्म दिया अपनी बेटी को, कोई ऊपर को हुक्म नहीं दिया। लेकिन उधर कोई अपने
जायज़ है ठीक? इनका सवाल ये है नफरत में सस्ता उधार में महंगा देना चाहिए। यही सवाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो उन्होंने कहा तू मालिक है, तेरी चीज है, बिल्कुल तू इसे महंगा करके बेच सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि तूने उधार दिया, तूने टाइम में उधार ना दिया तो तू उसके रेट बढ़ा दे, वो ब्याज है। आदम अलैहिस्सलाम का मज़हब इस्लाम था, तो क्या कुरान का वजूद भी उस ज़माने में था? इनका सवाल ये है आदम अलैहिस्सलाम का मज़हब इस्लाम था तो कुरान का वजूद भी उस टाइम का। भाई देखो हमेशा से दीन एक ही रहा, वो इस्लाम है। उसका नाम हुआ कि चाहे इस्लाम हो, उससे पहले चाहे यहूदियों में मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात लाके या ईसा अलैहिस्सलाम में आए इंजील लाके, वो सब अल्लाह के कलाम थे, तो वो सारी किताब अल्लाह की थी। तो इस्लाम शुरू से ये सारे मुस्लिम थे। मुस्लिम किसे कहते हैं? जो अपने आप को सरेंडर करते हैं। और कुरान का दूसरी मीनिंग भी किताब है। किताब हमेशा से आती है, उसका आखिरी एडिशन मूसा अलैहिस्सलाम की किताब हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफे हो, दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर हो या ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील हो, उन सबका आखिरी एडिशन ये है कुरान शरीफ। तो ये हमेशा से था, हमेशा रहेगा। हाँ जी, आप बताओ। जो नेक मानते हैं नमाज की कि वो चार रकात नमाज पढ़ करके दौड़ा पढ़ना वास्ते अल्लाह की, जबकि कुरान में जो है सूरह इखलास में आयत नंबर 2 तो अल्लाह समद, तो ये वास्ते अल्लाह का मतलब जो है वो कैसे? इनका सवाल ये है कि इसमें वास्ते अल्लाह के कहा जाता है नमाज की, इसकी क्या वजह है? भाई ये शो करने के लिए कि हम तौहीद में हैं और हम शिरक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नमाज के अल्लाह की बात कर रहे हैं, कोई और चीज नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने सूरह अनाम में 79 नंबर आयत में बात कहवाई है, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि मेरी सारी तवज्जो सारे कुछ अल्लाह के लिए और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। यही बात आप कहते हो कि अल्लाह मैं तेरे लिए नमाज पढ़ रहा हूँ, मुशरिकों में से नहीं हूँ। क्या इसमें ये भी कह सकते हैं कि खुशनुदी अल्लाह की हासिल की? खुशनुदी तो अपना जब आप अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं तो अपना खुशनुदी आ रही है। कुरान में मतलब तागूत आया है, इससे क्या मायने है? इनका सवाल है कुरान में तागूत शब्द आया, उसका क्या मायने है? तागूत कुरान में अल्लाह ने शैतान के लिए भी इस्तेमाल किया और तागूत शब्द अल्लाह ने बुतों के लिए भी इस्तेमाल किया कि तागूत की परस्तिश न करो। तो ये दोनों के लिए आया, मतलब शैतानी कुव्वतों के लिए तागूत कहा जाता है। भाई हमारा टैंक भरा हुआ है पानी का, कोई जानदार जिसके अंदर बहता हुआ खून है वो जब गिर के मर गया या चूहा मर गया तो उस चीज़ से कल का क्या करना चाहिए? इनका सवाल ये टैंक में कोई चूहा मर गया तो उसे किस तरह पाक करें? भाई सारा पानी निकालें और उसे 3 बार पाक करें। पाक हो गया, नबी को तसल्लुल की बहुत आसान है, कोई आपको बहुत ज़्यादा नमाज नहीं करते, आपके पास साबुन हो, सर्फ हो, उससे 3 बार टैंक धो लें और 3 बार पानी उसे निकाल लें पानी, ये बिल्कुल बेट करोगे। इस्लाम में सफाई है, पाकी है, इस्लाम में न घिन है और न किसी किस्म का बहन है। जब तक उसमें मछलियाँ ना जब तक ना पीवे पानी, मछली तो अपना बदल नहीं, जब आप पाक करोगे उसे 3 बार साबुन से धोगे मछली से। हाँ जी, आप लोग ये जो आपने बताई है तो आप जाए तो ये मतलब मैं खड़ा हो गया ना वहाँ इंग्लिश बात में पहले ये जरूरी है। इनका सवाल ये है कि मैंने सूरह नाम की 79 नंबर आयत बताई है, तो वो मुसल्ले में खड़े होके ये नियत से पहले पढ़ रहे हैं। भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब नियत पाला करो नमाज की तो ये आयत पढ़ लिया करो, लेकिन क्योंकि याद नहीं है लोगों को, तो जिस तरह बचपन में हमें रटाया जाता है 2 रकात नमाज नफिल बात है अल्लाह ताला की मुझे कोई हम करते रहते हैं, 70 साल का हुक्म यही करता है, जबकि हुक्म हुजूर का ये है जो आप कह रहे हैं। आप सबसे पहले बाल किसके काटेगा और किसने काटेगा? इनका सवाल है सबसे पहले बाल किसके काटेगा किसने काटे? ना तो ये मुझे पता किसने काटेगा, ना ये मुझे पता किसने काटे, तो मेरे भाई मैं तो बेल हूँ इस मामले में, इंशाल्लाह अगर पता लगा तो। क्या औलाद मर्द की किस्मत से और रिस्क जो है औरत की किस्मत से होता है? इनका सवाल ये है कि औलाद मर्द की किस्मत से और रिस्क जो है वो औरत की किस्मत। ये बहुत सारी साजिश करना देती है अपनी बहू को। माल अगर नहीं होता ना वो औरत के आने के बाद अगर उसका कारोबार खराब हो जाए तो ये कहती है कि माल तो औरत की किस्मत से हो, तेरी किस्मत खराब है, और अपनी बेटी अगर परेशान हो तो कभी जुदा नहीं होता। कोई हदीस की इस तरह की, ना कोई इस तरह की आयत है कुरान की। कुरान में मैंने कहा कि रिस्क कम
तेरे हाथ में, औलाद दूर रख तेरे हाथ। तो इसलिए ना मर्द की किस्मत और ना औरत की किस्मत, सब अल्लाह के हाथ में, वही देने वाला है। हाँ, लड़की का नाम नबिया रख देते हैं, तो लड़के का नाम मोहम्मद नबी रख सकते हैं। इनका सवाल ये है कि लड़की का नाम नबी रखते हैं तो लड़के का नाम नबी रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे मेरे नाम में मोहम्मद नबी नाम होता है, कोई हरज नहीं है उसको रख देते। नबी नाम तो फिर गलत हुआ ना, हैं? नबिया नाम तो गलत है, नहीं, नबी नाम होता है, नबी गलत नहीं है। नबिया की बात है। हाँ, हाँ जी, हाँ, मैं सवाल ये कि तयम्मुम की जगह हम वुज़ू भी कर सकते हैं मगर नहा नहीं सकते। तयम्मुम की जगह तयम्मुम जैसे तयम्मुम का हुक्म है और पानी को छू नहीं सकते, पानी को छू सकते हैं मगर नहा नहीं सकते, क्या उसमें वज़ू में ही काम चल जाएगा? गुस्ल की जगह जी, इनका सवाल ये है कि कभी गुस्ल वाजिब हो और पानी को वजू कर लें, नहा नहीं सकते, कोई डॉक्टर ने उनको भी बताई क्या गुस्ल से काम चल जाएगा? ये सब नहीं, क्या वजू से काम चल जाएगा? फिर तो तयम्मुम करना। ये नहीं हो सकता कि आप गुस्ल की जगह वजू कर लो, तो गुस्ल की जगह आपको तयम्मुम करना है अगर डॉक्टर ने आपको नहाने से मना किया है। ये अगर मान लो मैंने वो दे रखी है अपनी बेटी, अपनी बेटी को अपने पास पढ़ा नहीं सकती या नहीं पढ़ा सकती। इनका सवाल ये है, मैंने बेटी को दे रखी तो क्या मैं अपनी बेटी के बाद ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं ले सकते। 2 साल की है, 2 साल की फिर बाद में लेना मेरे नजदीक ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है, आपने गोद दे रखी, इसलिए इससे बचो, क्योंकि आगे चल के आपको उसकी आदत पड़ जाए, खुदा ना खास्ता, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बल्कि जिस बच्चे को वापस कर दो। नहीं वैसे तो अपने पुत्र के पास हो गई, वैसे मैं पढ़ाता नहीं, मैंने पूछा। ये तो इस्लाम में है ही नहीं, गोद दे बच्चे नहीं है इस्लाम में, पता नहीं कहाँ से बना दिया। हाँ जी, इसी तरह अगर मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपनी माँ के पास कितनी उम्र तक सुना सकते हैं? इनका सवाल ये है कि कोई लड़का है वो अपनी माँ के पास कितनी उम्र तक सो सकता है? नबी ने फरमाया 7 साल के बच्चे को नमाज पढ़ाओ, 10 साल का पढ़े तो उसकी पिटाई करो। तो आपको क्राइटेरिया दे दिया, इस्लाम के अहकाम 7 साल की उम्र में शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 7 साल का छोटा है, जिद्दी है, तो 10 साल में जबरदस्ती अलग करना है माँ से, सोने नहीं देना उसको। टाइम दे दो भाई, 10 मिनट अभी आप टाइम बता दे करो भाई, जमा लेने चल रहा। खाना भी आ रहा है अभी, खाना आ रहा है अभी। खाना आएंगे भी, खाना आने वाला है तो दुआ करा देते हैं, उसके बाद ये चालू करना, कोई और सवाल हो तो करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह तुम्हारी दुआओं को माफ फरमा, या अल्लाह अपनी रहमत फरमा, या अल्लाह फजल फरमा, या अल्लाह करम फरमा, या अल्लाह हमें नेक कामों में शामिल फरमा, या अल्लाह हमसे जो भी कोताही हुई है वो दूर फरमा, या अल्लाह हमें अपने दीन पे चलना आसान फरमा, या अल्लाह कुरान की सही समझ अता फरमा, या अल्लाह अपने रिश्तेदारों के साथ ऊंचे अता फरमा, या अल्लाह हमारे दिल से भी बुग़्ज़ है, नज़र में हसद है, उससे हमारे दिलों को साफ फरमा, या अल्लाह तेरी कीना से बुराई से हमारी हिफाजत फरमा, या अल्लाह हर तरीके की शर है जो हमारे मुल्क में हो या दुनिया में हो, हमारी हिफाजत फरमा, या अल्लाह ताबूत से हमारी हिफाजत फरमा, या अल्लाह शैतान से हमारी हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह हमें हलाल रोज़ी अता फरमा, या अल्लाह ईमान वाली आसान ज़िंदगी, ईमान वाली आसान मौत अता फरमा, या अल्लाह सही तरह से शुक्रगुज़ारी की तौफ़ीक़ अता फरमा, या अल्लाह सब की तस्लीम करने वाले, सब करने वाले बना, या अल्लाह पाक हमने यहाँ जो पढ़ा सुना उसके अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, या अल्लाह इसमें जितने भी शर के पहलू हमारे दिलों से दूर फरमा, जितने खैर के पहलुओं पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें दीन की सही समझ अता फरमा, या अल्लाह पाक हमें दीन पे चलने वाला बना, हुज़ूर की हमदर्दी की मोहब्बत अता फरमा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़ियारत नसीब फरमा, या अल्लाह हमें अपनी औरत के साथ, बच्चों के साथ शफ़क़त करने वाला बना, या अल्लाह हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपने माँ बाप की हुर्मत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हुज़ूर के रास्ते में चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जिन चीज़ों से हुज़ूर ने मना फरमाया उनसे बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जिन चीज़ों को हुज़ूर ने करने का हुक्म दिया उनसे करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, या अल्लाह हमारे